Hello students, I hope that you have already viewed the first part of the life process. Now, we will discuss the next part of this chapter, that is part second of the life process. In the second part of life process, we will see how photosynthesis takes place in plants and what is photosynthesis. So, what is photosynthesis? Photosynthesis is defined as the process of synthesis of food, that is glucose, in plants in the presence of sunlight. Because photosynthesis word derived from two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to prepare something, to synthesize something. Therefore, photosynthesis is the process in plants of synthesis of food. It is a process through which plants synthesize their own food in the presence of sunlight. Okay. Now, we will see how many raw materials are essential for photosynthesis. For photosynthesis, plant requires 4 raw materials. What are they? First is carbon dioxide. Second is water, third is chlorophyll, and fourth is sunlight. That means there are 4 raw materials which are required for photosynthesis. In the absence of any one raw material, photosynthesis will not occur. Now we will see how plant get these raw materials. So carbon dioxide, we know carbon dioxide is a gas. In plants, leaves are there, and in the back side of the leaf, too much tiny pores are available. Such tiny pores are called stomatal pores. So what is the location of stomatal pore? Stomatal pores are found on the back side of the leaf, and in biology we will say stomatal pores are found in the dorsal surface of the leaf. What is the meaning of dorsal surface? Dorsal surface means the back side of the leaf. And these stomatal pores are guarded by 2 bean-shaped cells. These are 2 bean-shaped cells. These bean-shaped cells are called guard cells. And these guard cell controls the opening and closing of stomata. Because in the daytime, when plant requires carbon dioxide, stomatal pore will open, and when there is no use of stomata, then stomatal pore remains closed. This opening and closing of stomata is guarded by guard cells. Okay, now I will ask you something. Photosynthesis is a unique process in plants. Who discovered this process? Then photosynthesis was discovered by Jan Ebbinghaus. He was a renowned personality in the field of biology who was able to define photosynthesis and was the first personality to discover photosynthesis at that time. The second raw material of photosynthesis is water, that is H2O. As we know, water is present in soil. Therefore, for photosynthesis, plant absorbs water from soil by the help of roots. The next raw material for photosynthesis is chlorophyll. As we all know, chlorophyll is the green pigment of plant. Due to presence of this chlorophyll, we see plant as greenery. They are green in color. Why? Because of presence of a green pigment. That green pigment is called chlorophyll. And the next important raw material for photosynthesis is sunlight. And we know sun is the ultimate source of energy. Sunlight is available in our environment, and the function of chlorophyll is to trap sunlight. Chlorophyll ही sunlight को क्या करती है? Trap करती है. इसको याद रखना है. So what is photosynthesis? Photosynthesis derived from 2 words. Photo की meaning light, synthesis means to prepare. कुछ बनाना है ना, कुछ प्रोड्यूस करना. तो we will define photosynthesis as
ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का सिंथेसिस होता है, किसमें? प्लांट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सच प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हु डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय जैन आइजेंहॉस। आफ्टरवर्ड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कितनी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स। Such small pores are called stomatal pore. Stomatal pores are found in the back surface of the leaf, and that back surface of the leaf is termed as dorsal surface. पीछे वाला पार्ट लीफ का, उसमें ज्यादातर stomatal pore पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद याद रखना है कि stomatal pores, these pores are guarded by guard cells, क्योंकि stomatal pore ओपन भी होते हैं और बंद भी होते हैं। जब गार्ड सेल अपनी सराउंडिंग से वाटर को ले लेती है तो गार्ड सेल क्या होती है? स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने के कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल्स अपने सराउंडिंग के वाटर को एब्जॉर्ब ना करके एब्जॉर्ब्ड वाटर को सराउंडिंग में रिलीज कर दे तो गार्ड सेल क्या होती है? श्रिंक हो जाती है। तो गार्ड सेल जैसे ही श्रिंक होती है तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर ड्यू टू गार्ड सेल्स, and guard cells are responsible for opening and closing of stomatal pore. Why? Because guard cells are able to open or close stomata by the help of water. When they absorb water, stomatal pore will open, and when they release water, stomatal pore will close. Therefore, the opening and closing of stomata is due to guard cells. Now we will see what are the other events that takes place in photosynthesis. So basically there are 3 events in photosynthesis, और ये events in photosynthesis ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में मैंने मेंशन किया है कि इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, स्टेट इवेंट्स टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। तो इसको ध्यान से समझना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला जो काम होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट में, उसी क्लोरोफिल का काम है ये कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है। तो फर्स्ट इवेंट फोटोसिंथेसिस में यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब जैसे ही लाइट एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, अब उस लाइट एनर्जी को प्लांट यूज करेगा। किसमें यूज करेगा? तो फोटोलाइसिस में। फोटोलाइसिस 2 वर्ड है, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन होना? तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड इवेंट है फोटोसिंथेसिस में, वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, और हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वाटर को जैसे ही ब्रेक करते हैं तो 2 गैसेस रिलीज होती है, एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। इस कारण कहा जाता है प्लांट लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन देते क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और वाटर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है वाटर का, एंड 2 गैसेस वर रिलीज्ड, फर्स्ट इज योर हाइड्रोजन गैस एंड सेकेंड इज योर ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो गई, तो इस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा। तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा साइंस में, किसी भी चीज में हाइड्रोजन को ऐड कराना एक प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। किसी भी चीज में हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो थर्ड स्टेप में रिडक्शन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रखा है उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब किसको ऐड कराना? हाइड्रोजन को ऐड कराना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या फॉर्म करती है? ग्लूकोज फॉर्म करती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो एम है, क्या एम है? कि प्लांट में फूड का प्रोडक्शन करना। तो प्लांट में फूड का प्रोडक्शन हो गया कौन से इवेंट में? थर्ड इवेंट में, जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, और इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन कहते हैं। तो ये तीनों इवेंट, सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई,
क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, आफ्टरवर्ड्स लाइट एनर्जी हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, दो गैसेस निकल गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। इससे ही एक इक्वेशन बन गई फोटोसिंथेसिस की। क्या इक्वेशन बनी, ध्यान से देखो, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, आसानी से समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए होता है वाटर, हमें चाहिए होता है सनलाइट और हमें चाहिए होता है क्लोरोफिल। ये चारों चीज हमने एक तरफ लिख दी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब जब हमने ये चारों चीज लिख दी तो इससे बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। आफ्टरवर्ड्स क्या रिलीज होगा, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन और साथ में 6 मोल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्टेंट साइड हमने चारों रॉ मटेरियल लिख दिए और प्रोडक्ट में क्या क्या बना, प्रोडक्ट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है, जोसेफ प्रिस्टले। इनका नाम क्यों लिखा है, इनका नाम इसलिए लिखा है, भले ही इन्होंने फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी नहीं की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी तो आइजनहॉर्स ने की थी, लेकिन इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जोसेफ प्रिस्टले थे। उसके बाद अब देखो ध्यान से, या तो तुम ये इक्वेशन एग्जाम में लिख दो तो भी सही है, या फिर इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करते हैं। हम जानते हैं यहां पर भी H2O है और इस तरफ भी H2O है, तो ये +6H2O को उधर ले जाएं तो क्या होगा, -6H2O हो जाएगा। तो 6H2O और 12H2O में 6H2O को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना H2O बच गया, 6H2O। गिव सेम टू सेम प्रोडक्ट लिख दो, C6H12O6 + 6O2। तो ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है। उसके बाद ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पूरा फोटोसिंथेसिस का, इस कॉन्सेप्ट में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज स्टेट इवेंट टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, स्टोमेटल पोर कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। तो जब स्टोमेटल पोर की गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टोमेटल पोर्स आर ओपन। जब वाटर को रिलीज कर देती है, स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे। लेबलिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर तुमने इतनी बातें अच्छे से समझ ली तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो गया है ना। अब लास्ट में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में करना। यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ 3 सच प्लांट्स, दोज प्लांट हु आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इवन इन द टाइम ऑफ नाइट, जो रात के समय भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 3 प्लांट का एग्जांपल तुमको बताना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।